Welcome back to my class. Hello students. Myself Mohit Kumar Jain. I am standing before you once again with the topic parts of speech and noun. Okay, in last part we have read about parts of speech with their kinds, about noun with their kinds, and some of noun I have described in details. Let's see further. Okay, we have read about noun, its definition, its kinds, proper, common, abstract, proper, common, abstract, collective, material. Okay students, we have read about proper, common and abstract. हम इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव एंड मटेरियल. लेट्स सी अबाउट देम. कलेक्टिव नाउन. See, collective noun. What the word mean collective? Collective means group. Collective means group. किसी का समूह. Whether it be a person, whether it be a thing, it is a group. चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, किसी का भी ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. ओके, लिसन. कलेक्टिव नाउन इज it is a sub kind of common noun. ये किसका सब काइंड है? कॉमन नाउन का. ओके स्टूडेंट्स, इट इज अ सब काइंड ऑफ कॉमन नाउन. नेक्स्ट, व्हाट डज कलेक्टिव नाउन? ए ग्रुप ऑफ person or thing, a group of persons or things or animals are called collective noun. Group of persons, things or animals are called collective noun. Like, for example, let's see, for example, army. Listen, all of you very well know about army, Indian army. You know that? Indian army. In army, there are many soldiers. We can say many soldiers make an army. अनेक सैनिकों से मिलकर क्या बनती है? आर्मी बनती है. तो इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. ओके. सेकेंड, फ्लीट. फ्लीट ये भी ग्रुप है. किसका? A group of ants. चींटियों का जो दल होता है, चींटियों का जो समूह होता है, क्या कहलाता है? फ्लीट. ओके. कैटल. a group of animals like cows, buffaloes, cattle. Okay.
उसी प्रकार लाइक क्राउड, भीड़, ए ग्रुप ऑफ people, a group of people, it is also collective. Okay, see, a collective noun, something important for you, something important to you, that a collective noun, a collective noun is always singular what when it is divided it becomes plural. A collective noun is always singular, but when it is divided, it becomes plural. Okay, for an example, the committee members have decided to do this. The committee members have decided to do this. Here you can see the word committee. Committee is a collective noun. A group of person makes a committee. Committee means समिति. लोगों के द्वारा बनाया गया एक समूह समिति कहलाता है. लेकिन जब लोग उसमें वर्क करते हैं तो वो वर्क समिति के नाम से नहीं होकर उसके लोगों के नाम पर होता है, वो डिवाइड हो जाता है और डिवाइड हो जाने पर वहां वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. लेट्स मूव अहेड विद अनदर नाउन. Another noun, it is material. Material noun. It means द्रव्य, द्रव्य या द्रववाचक संज्ञा. All material things, all material things are called material noun. You know about material. Material किससे बना है? Matter. Matter means पदार्थ. In science language we can see that the thing that सराउंड्स अ प्लेस, वह वस्तु जो एक स्थान को घेरती है क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है. वह वस्तु जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है. वही पदार्थ क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन कहलाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑयल, तेल, इट इज मटेरियल नाउन. लाइक घी, मटेरियल नाउन. लाइक mustard, material noun. Okay, iron, material noun. Okay, all these things are material noun because all these things are material. Got it? Let's see further. Now we have read about noun, definition, its kind and their definition, along with their types, their examples,
Now let's see about noun and number. Noun and number. Number means बचन. Number represents for बचन. Noun with number. Okay. You know very well that number are of two types. First, singular. Another one is plural. नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. नाउ लेट्स क्लासिफाइड नाउन विद इट्स नंबर. सी, प्रॉपर noun is always singular. Proper noun is always singular. Okay. Next, material noun is always singular. Next, abstract noun is always singular. Okay. These three nouns are always singular, they can't be plural. They can't be in plural form. हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते, ये ऑलवेज कैसी रहती हैं? सिंगुलर रहती हैं. Listen to me carefully. These three nouns are always singular, they can't be plural. Okay. Next, common noun. It can be both. Common noun can be a singular one, common noun can be a plural one. It comes in both. Common noun दोनों में आती है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो. ओके. लाइक कलेक्टिव. अभी मैंने आपको बताया, collective noun is always singular, but when it is divided, it becomes plural. जब इसको टुकड़ों में बांट दिया जाए तो ये प्लूरल हो जाएगी, और टुकड़ों में नहीं बांटे तो सिंगुलर. कॉमन सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है. समझ में आया कि ये तीन नाउन तो ऐसी हैं जो हमेशा सिंगुलर रहेंगी, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता. प्रॉपर नाउन, मटेरियल, अबस्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा राम. कल हमने पढ़ा था राम. क्या राम का प्लूरल बन सकता है? राम एक व्यक्ति का नाम है, क्या राम को हम ये लिख सकते हैं? दो राम. राम्स कर सकते हैं? नहीं, गलत. ओके. हमने लिखा था कल जयपुर, एक प्लेस का नाम. क्या हम जयपुर कर सकते हैं? नो, इट इज रॉन्ग. ओके. उसी प्रकार मटेरियल को देखते हैं. ऑयल सिंगुलर है, क्या हम इसमें एस जोड़ सकते हैं? नो, इट इज क्वाइट रॉन्ग. इसलिए इसका भी क्या नहीं बनेगा? प्लूरल नहीं बनेगा. अबस्ट्रैक्ट, ऑनेस्टी, ईमानदारी. ये क्या है? सिंगुलर है, इसमें हम क्या नहीं जोड़ सकते? एस. इफ वी एड एस इट बिकम्स रॉन्ग. ओके. ऑल दीज थ्री नाउन्स रिमेन सिंगुलर, बट कॉमन एंड कलेक्टिव कैन बी प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, सी, बॉय. बॉय इज द क्लास ऑफ अ पर्सन. एक व्यक्ति की क्लास को दर्शाता है बॉय. इट बिकम्स कॉमन नाउन. क्या है ये? कॉमन नाउन है. यदि हम इसमें क्या ऐड कर दें? एस, इट बिकम्स बॉयज. इजीली वे में क्या बन गया? प्लूरल हो गया. ये सिंगुलर है, ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया. तो कॉमन नाउन कैन बी अ सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके. लेट्स सी कलेक्टिव. अभी आपको बताया था
आर्मी सिंगुलर है, आर्मी सिंगुलर है, और मैंने लिखा राजपूत बटालियन, राजपूत बटालियन ऑफ आर्मी, राजपूत बटालियंस ऑफ आर्मी, इट बिकम्स प्लूरल, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। जब डिवाइड हो जाएगा तो वो प्लूरल, यूनिट में रहेगा सिंगुलर। आपके समझ में आया? आई होप आप सभी के समझ में आया होगा कि कौन सी नाउन सिंगुलर होती है और कौन सी नाउन प्लूरल होती है, किसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, किसको प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है। ओके, लेट्स सी अबाउट नाउन। हम नंबर ही पढ़ रहे हैं, नंबर के अकॉर्डिंग नाउन दो प्रकार की होती हैं। सी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सी स्टूडेंट्स, according to number, noun are of two types, noun are of two types, countable noun and uncountable noun. Countable noun are two types, singular countable and plural countable. It means countable noun are of two types and uncountable noun of नन टाइप। इसका कोई टाइप नहीं होता। काउंटेबल के टू टाइप होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, और अनकाउंटेबल का कोई टाइप नहीं होता। अब इन नाउनों को इसमें क्लासिफाइड करते हैं, इन सारी नाउनों को इसमें क्लासिफाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। देखिए, जो आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो हमेशा कैसी रहेगी, अनकाउंटेबल रहेगी। ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा कैसी रहेगी, अनकाउंटेबल रहेगी। आपकी मटेरियल नाउन जो है, ये भी हमेशा कैसी रहेगी, अनकाउंटेबल रहेगी। आपकी प्रॉपर नाउन ये कैसी रहेगी, हमेशा सिंगुलर रहेगी, काउंटेबल में जाएगी लेकिन ये अनकाउंटेबल नहीं होगी। प्रॉपर नाउन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल होगी, ना कि अनकाउंटेबल। ओके, नेक्स्ट कलेक्टिव। कलेक्टिव भी किस में जाएगी, सिंगुलर काउंटेबल। काउंट कर सकते हैं लेकिन कैसे, सिंगुलर में। प्लूरल क्या होगा, प्लूरल में आपकी कॉमन भी आएगी और कलेक्टिव भी आएगी, और सिंगुलर में आपकी कॉमन भी आएगी। देखो, वो संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं वो दो प्रकार की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आपकी प्रॉपर नाउन हम गिन सकते हैं, संख्या में एक होंगे। कलेक्टिव ये संख्या में एक होंगे, कॉमन ये संख्या में एक हो सकते हैं। प्लूरल कॉमन जाएगा, संख्या में अनेक हो सकते हैं, कलेक्टिव को डिवाइड कर देंगे, ये संख्या में ज्यादा हो जाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट इसकी कोई संख्या नहीं होती, इसकी कोई संख्या नहीं होती, इसलिए क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। मटेरियल को संख्या में नहीं किया जा सकता, इसको क्या किया जाता है, इसको मापा जा सकता है। इसका क्या किया जाता है, मापन। और जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को हम मापते हैं वो किस में नहीं जाती, काउंटेबल नहीं होती। जिस वस्तु को हम मापते हैं, तोलते हैं, वो क्या होती है, अनकाउंटेबल। ओके स्टूडेंट्स, सी मैंने आपको नाउन को बताया, नाउन का डेफिनेशन, नाउन के प्रकार, उनके प्रकारों की डेफिनेशन, उनके टाइप्स। अब उसके बाद हमने नंबर सीखा कि कौन सी नाउन सिंगुलर होती है, कौन सी नाउन प्लूरल होती है, कौन सी ऑलवेज सिंगुलर रहती है, किसको प्लूरल बनाया जा सकता है। अब नाउन के नंबर को देखा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, कि कौन काउंटेबल में कौन कौन सी आती है, सिंगुलर में कौन सी आती है, प्लूरल में कौन सी आती है, और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी आती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को नाउन का ये चैप्टर बहुत अच्छे से आया होगा। आज हमारा ये नाउन का चैप्टर यहीं समाप्त होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। ओके, और यदि आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो, एनी डाउट यू हैव, you can tell me and please give me your feedback so that I can improve for you what matter you want. Okay, stay home, stay safe. Thanks to all of you.